So let's proceed ahead with your mock for BARC, Bhabha Atomic Research Center. So Yes, sir. we'll be proceeding ahead with your mock. Me, Dr. Atender, Virendra Saklani sir, Vishal Sharma sir, we will proceed ahead with your mock. So Yes, before that, we want your favorite subjects. What are your favorite subjects for this? Sir, my favorite subjects are fluid mechanics, heat transfer, strength of material, and thermodynamics. Done. So Dr. Atender will proceed with fluid mechanics, Vishal sir with heat transfer, Saklani sir with strength of material, and I'll take thermodynamics, right, Sudhanshu? Yes, So yes, sir. let's proceed ahead with that now. Yes, Sudhanshu, let me start with heat transfer first. Yes, yes, sir. Sure, sir. So, Sudhanshu, what do you understand by steady state heat transfer? Sir, steady state heat transfer means, sir, if we talk about in heat transfer, then बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कंडीशन है कि जितना भी एनर्जी इनपुट हो रहा है बॉडी के अंदर उतना आउटपुट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है. यदि सपोज यदि ऐसा नहीं होता है, देन एनर्जी का स्टोर होने लगेगा बॉडी के अंदर, जिससे टेम्परेचर का वेरिएशन होने लगेगा. तो इसके लिए एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट होना चाहिए. एंड इन मैथमेटिकली वी कैन से मीन्स डेली अपॉन डेल टी विल बी जीरो. मीन्स जितना एनर्जी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. Just suppose if we will take a plate, some kind of plate, if we will take and if we will place that plate in some furnace so that its temperature will increase, just to carry out some kind of annealing process, for example. Okay. Yes, yes. So there yes, is a yes, metallic plate we placed in furnace and it is at some higher temperature. Yes, now yes, we are placing that plate, hanging that plate vertically in a room. Okay, okay, sir. So what do you feel? That will be the steady state heat transfer or unsteady state heat transfer? Sir, 1 minute, sir. The plate we placed in furnace, heated up to some temperature, we removed it from the furnace. Now we are hanging it vertically in a room. Yes, sir. Sir, it will be unsteady heat transfer, sir. Sir, क्योंकि Why सर unsteady? सर क्योंकि सर यहाँ पे टेम्परेचर जो टाइम के साथ चेंज करेगा सर, क्योंकि जितना यहाँ पे बस एनर्जी आउटपुट हो रहा है, एनर्जी इनपुट नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वो हैंग कर दिया गया. देन उसके बाद उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो बस एनर्जी बाहर आ रहा है, जितना So how एनर्जी. you can find out rate of cooling in this case, Sudhanshu? इस केस में rate of cooling कैसे निकालोगे आप? सर यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग मींस यहाँ पर सर हीट का ट्रांसफर जनरली दो मीडियम से होगा, वन इज कन्वेक्शन एंड वन इज रेडिएशन. सर एंड कन्वेक्शन से जो हीट जो रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होगा जनरली नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर. So how you are going to write the energy balance in this case? इस केस में energy balance कैसे लिखोगे सुधांशु? Yes, yes, sir. Sir, 1 minute, sir. H AS into T minus T infinity plus sigma AE into T to the power 4 minus T infinity to the power 4. इस रेट से ही ट्रांसफर हो रहा है. M dot Cp into dt beta deta. Sir, energy equation will be this, sir. Just put it in front of the camera. Yes, sir. 1 minute, sir. Sir, this will be, sir. Sir, is it visible, sir? HAS into T minus T infinity plus sigma fine. Okay. What are the assumptions actually to write this energy balance, Sudhanshu? Based on what assumption we can write this energy balance? Sir, energy balance means, sir, to solve this equation we have to take some assumption, sir. If we have to solve this assumption, sir. So there is no assumption required for that. Yes, sir. 1 minute, sir. Are you sure about that? Yes. 1 minute, sir. I'm thinking, sir. Sir, here, sir, heat transfer coefficient is not varying with temperature, sir. So is it then okay. This formula is valid. Fine. And 1 minute, sir. T minus T infinity
and sigma a 50 to the power 4, and sir a specific heat capacity also not varying with temperature sir ठीक है, of body, ठीक है. and sir surrounding temperature should be constant sir. Actually, this we are writing at a particular instant of time. So all these things will be constant. At a particular instant of time, H will be constant, CP will Yes be sir. constant. Yes, So yes sir. those assumptions are not actually required. Those things are constant actually at a particular temperature, at a particular Yes, yes sir. instant. Sir, but sir, if we solve this equation, then we have to take this type of But assumption. the most important assumption is, Sudhanshu, at a particular instant of time, we are writing some temperature T of the body. How we Yes, can yes say sir. that entire body is at temperature T? Yes sir, we have to take a lump body analysis sir. Means Yes, lump we are body. neglecting the internal temperature gradient. Yes sir, like Biot number should be less than 0.1 sir. अच्छा, इसका suppose Biot number is less than 0.01, then what kind of temperature profile we are going to get? 0.1, sorry, 0.1. Biot number less than 0.1. So what kind of temperature profile we are going to get? Temperature profile means किसके रिस्पेक्ट में सर, means Temperature, how the temperature is going to change with time? It's a time sir. Sir, I think exponentially sir. Exponentially करेगा. तो जो Yes, rate sir. of cooling है, rate of cooling क्या करेगा? That is going to decrease, increase or remain constant? Rate of cooling. Sir, dt upon d tau will be then इतना टेम्परेचर घटेगा सर, डिक्रीज करेगा सर क्योंकि dt upon d tau is directly proportional to So instantaneous rate of cooling will decrease. rate of cooling. Sir, 1 minute. If temperature no sir यहाँ पे माइनस भी है सर, इसलिए इंक्रीज करेगा सर यहाँ Increase पे यस सर क्योंकि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा था वहाँ पे माइनस एम डॉट सी पी इंटू डी टी अपॉन डीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो टाइम के साथ घट रहा है, देन माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग increase करेगा. Are you sure rate of cooling increase करेगा? Increase करेगा, decrease करेगा? Time के साथ जो rate of cooling है, rate of cooling means dt by dt, rate of change of temperature with time, that is going to increase or decrease? यस सर डिक्रीज करेगा सर, dt अपॉन डी टाउ डिक्रीज करेगा सर क्योंकि Decrease करेगा. Why it is going to decrease? Are you sure about this now? यस सर तो सर क्यों क्योंकि decrease करेगा? सर क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग जो है वो इस इक्वेशन से पता चल रहा है dt अपॉन डी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड जो टेम्परेचर जो बॉडी है वो टाइम के साथ घट रहा है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग जो है वो भी अच्छा, मेरे को घटेगा. बताओ सुधांशु, if you want to cool this plate faster, so yes, how sir. it is good to place that plate, vertically or horizontally or at some inclined angle? No sir vertically sir. Why? सर यदि हॉरिजॉन्टली यदि सरफेस पे रखा जाएगा देन वहां पे ओनली वन एरिया ही कवर होगा कन्वेक्शन के लिए. नहीं, हम हॉरिजॉन्टली हैंग कर रहे हैं, we are hanging it. यस सर. यहाँ पे एक स्ट्रिप बांध दिया, यहाँ पे एक स्ट्रिप बांध दिया, we are hanging it horizontally. अच्छा, we are hanging it vertically, we are hanging it vertically and we are hanging it at some angle. यहाँ पे एक थ्रेड लगा दिया, यहाँ पे एक रोप बांध दी, यहाँ पे एक रोप बांध दी, यहाँ पे एक रोप बांध दी. So it is not like that we are placing this bottom surface over any particular surface. ऐसा नहीं है. ओके सर. तो कैसे प्लेस करोगे? हॉरिजॉन्टली हैंग करोगे, हॉरिजॉन्टली हैंग करोगे, वर्टिकली हैंग करोगे, या एट सम एंगल यू विल हैंग द प्लेट सो दैट इट विल कूल फास्टर? सर यहाँ पे सर फ्री कन्वेक्शन हो रहा है सर, यहाँ पे फ्री कन्वेक्शन हो रहा है, देन सर यदि किसी एंगल पे यदि रखते हैं देन यहाँ पे वहाँ पे जी का इफेक्ट भी आ जाएगा, यहाँ पे जी का जो वो सर यदि यहाँ पे इंक्लाइंड रखते हैं प्लेट को देन यहाँ पे जो ग्रेस्टोफ नंबर है वो जी कॉस थीटा हो जाएगा सर, इफ इट इज इंक्लाइंड एट थीटा देन सर ग्रेस्टोफ नंबर कम हो जाएगा, इससे कारण जो हीट ट्रांसफर है फ्री कन्वेक्शन के कारण वो घट जाएगा, इसलिए सर वर्टिकली ही रखना अच्छा रहेगा सर. अच्छा, मेरे को बताओ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या क्या होंगी? व्हेन यू आर प्लेसिंग द प्लेट हॉरिजॉन्टली, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन?
हॉरिजॉन्टली जब कर रहे हो तो क्या करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, और वर्टिकली कर रहे हो तो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या है? सर यदि वर्टिकली प्लेस किया जाए then जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगा सर वो जो प्लेट का जो लेंथ होगा उसके बराबर हो जाएगा सर। और सर यदि हॉरिजॉन्टली देखा जाएगा देन जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है सर वो A/P के बराबर होगा सर, जहां A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड P इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट सर। सुधांशु, फ्री कन्वेक्शन में जो H है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर H डिपेंड्स, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड्स? व्हिच फैक्टर? H डिपेंड करता है। H डिपेंड करता है। H depends it depends upon sir 1 minute sir. Sir, which means which type of flow sir means it is laminar flow, turbulent flow, इस पे डिपेंड करेगा सर। और फिर और फिर sir 1 minute sir. Grashof number and Nusselt number is the function of Grashof number and Prandtl number in G beta is Q delta. सर टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा सर कि क्या टेम्परेचर डिफरेंस है सर प्लेट और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच में। और फिर से एलसी पे डिपेंड करेगा सर, जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है उस पर डिपेंड करेगा प्लेट का क्या है। और सर डायनेमिक विस्कोसिटी सर इस पे भी डिपेंड करे सर, मींस काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे सर। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं हम? हाउ वी कैन फाइंड आउट H वैल्यू? कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को नेचुरल कन्वेक्शन में, फ्री कन्वेक्शन में कैसे निकालते हैं? सर फ्री कन्वेक्शन में सर जो नसल्ट नंबर होता है वो फंक्शन होता है ग्रासॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का सर, एंड नसल्ट नंबर इज इक्वल टू HLC अपॉन K होता है सर। एंड सर ग्रासॉफ नंबर का जो फॉर्मूला होता है G बीटा LCQ डेल्टा T अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होल स्क्वायर। एंड अच्छा, आपके पास मान लीजिए जो प्लेट था, आप इसको कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर वाला केस तो नहीं मान सकते, बिकॉज इट इज नॉट ए कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर केस। हालांकि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर मान सकते हो, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बट मान लीजिए हमारे पास एक केस है सुधांशु, वी आर हैविंग ए केस इन व्हिच वी आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ कांस्टेंट हीट फ्लक्स। वो सर वो प्लेट है सर, वो प्लेट ही है, कांस्टेंट प्लेट है बट कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस है। कांस्टेंट हीट फ्लक्स मींस जो प्लेट है उसको कांस्टेंट हीट फ्लक्स दिया जा रहा है। हाँ, अच्छा ओके ओके सर। तो तब कैसे निकालते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सुधांशु? सर हीट फ्लक्स इज इक्वल टू HH into थीटा हो जाएगा सर। सपोज एट H डिस्टेंस पे लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सपोज HH है, देन हीट फ्लक्स इज इक्वल टू HH into थीटा है सर। आपने मॉडिफाइड ग्राशॉफ नंबर सुना है सुधांशु? यू हर्ड अबाउट मॉडिफाइड ग्राशॉफ नंबर? Modified sir, only I only have heard about Grashof number sir. But Grashof number you will not be able to define in case of constant heat flux because the temperature is not constant. Yes sir. अगर constant heat flux का हम केस लेते हैं तो temperature is not constant, and if temperature is not constant then how we will able to define the that Grashof number G beta delta T LQ by nu square कैसे डिफाइन करोगे? सर उस केस में वो ये डिफाइन नहीं होगा सर। यस सर, उस केस में ये डिफाइन नहीं होगा सर। सर इसका मॉडिफाइड ग्राशॉफ नंबर का आइडिया। अच्छा, मेरे को बताओ सुधांशु, इसी वर्टिकल प्लेट के केस में यस सर HL में और H बार में क्या रिलेशन होगा इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन? आपको मेरे को रिलेशन बताना है। सर फ्री कन्वेक्शन सर फोर्स कन्वेक्शन में लैमिनार HR फ्लो फ्री कन्वेक्शन, टर्बुलेंट फ्लो फ्री कन्वेक्शन, वर्टिकल प्लेट। सर H बार का और HL का क्या रिलेशन होगा एंड हाउ यू कैन ऑब्टेन दैट रिलेशनशिप सुधांशु?
सर यहाँ पे HL मींस लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है सर। हाँ HL लोकल yeah. लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द ट्रेलिंग एज। ये सर यहाँ पे जो H बार जो है वो फोर्स कन्वेक्शन में, फोर्स लेमिनार कन्वेक्शन में H बार इक्वल टू 2HL होता है सर। और सर H बार इक्वल टू HL किस केस में? सर H बार इक्वल टू 2HL सर इन 2HL फोर्स, यस सर, इन फोर्स कन्वेक्शन लेमिनार फ्लो में। फोर्स कन्वेक्शन लैमिनार फ्लो किस केस में? वर्टिकल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट या दोनों में? नो सर, वर्टिकल प्लेट में सर। यस सर, वर्टिकल वर्टिकल प्लेट प्लेट में या हॉरिजॉन्टल प्लेट में? सोच लो आप, बिकॉज वर्टिकल प्लेट में तो नहीं होता ये सुधांशु, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट में होता है। में। अच्छा कैसे निकालते हैं हम? विच पर्टिकुलर रिलेशनशिप इक्वेशन वी यूज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन H बार एंड HL? कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं सुधांशु? सर यहाँ पे सर इंटीग्रेशन करते हैं सर, मींस यदि एच का वैल्यू पता है इन द फंक्शन ऑफ h, देन वी कैन फाइंड आउट h बार इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से L hh into dx upon L। अच्छा सुधांशु, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रे बॉडीज? व्हाट आर ग्रे बॉडीज? सर ग्रे बॉडीज वो होता है जिसका जो एमिसिविटीज होता है सर, वो एमिसिविटी वो वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होता है सर। एमिसिविटी किसका फंक्शन नहीं होता? वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होता है सर। अच्छा, why we consider a surface as a gray? In heat transfer we consider a surface as a gray, diffuse. Why we consider surface as gray surface, gray body? Significance क्या है इसका? सर इससे सर जो ग्रे बॉडी मानने से सर जो एमिसिविटी का जो वेरिएशन है जो वेवलेंथ के साथ, वो मतलब नहीं होता है सर, इसमें एमिसिविटी कांस्टेंट हो जाता है सर, वन एज तो उससे नहीं क्या हो जाता क्या है एडवांटेज मिलता है? सर इससे। मींस हम लोग डायरेक्ट मतलब निकाल सकते हैं सर वो तो रियल बॉडी के केस में तो होता है वो, तो why, what is the advantage of considering a surface as a gray? Because real surface behavior will not be यस like that, gray surface behavior. यस यस सर। Why we consider that? सर 1 मिनट। अच्छा रेडिएशन शील्ड क्या होती है सुधांशु? व्हाट आर रेडिएशन शील्ड्स? सर रेडिएशन शील्ड होता है सर जब कोई दो प्लेट के बीच में रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है, तो देन दो प्लेट के बीच में रेडिएशन हीट ट्रांसफर को डिक्रीज करने के लिए रेडिएशन शील्ड का यूज किया जाता है अच्छा सर। शील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बढ़ाते हैं? हाउ यू कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ शील्ड? किस तरह का शील्ड जो है रेजिस्टेंस ऑफर करती है, एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ शील्ड? रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं सर? 1 मिनट सर रेजिस्टेंस 1 माइनस E है, देन सर उसका एमिसिविटी घटा के सर। एमिसिविटी घटाना पड़ेगा, कैसे घटा सकते हैं शील्ड का एमिसिविटी? सर उसको और थोड़ा रफ बना के सर। रफ बना के? ये सर आई थिंक सर उसको थोड़ा रफ। तो शील्ड जो होती है वो रफ होती है या पॉलिश्ड होती है? सर जनरली पॉलिश्ड ही होती है सर। तो पॉलिश्ड होती है, बट अगर हम उसको रफ कर देंगे तो एमिसिविटी बढ़ जाएगा, ऐसा क्यों? अच्छा इसको सोचना कि रफनेस से एमिसिविटी बढ़ेगा या घटेगा, आपको क्या लग रहा है, एमिसिविटी बढ़ेगा या घटेगा? यस ओवर टू डॉक्टर अतिंदर। सर सर एमिसिविटी से सर रफनेस से 1 मिनट सर एमिसिविटी बढ़ना सर ठीक है सुधांशु, एट एमिसिविटी लास्ट आई बढ़ना विल चाहिए। प्रोवाइड द फीडबैक। ठीक है, नाउ द सेशन डॉक्टर अतिंदर सर इज गोइंग टू आस्क यू some question from fluid mechanics. Okay, Sudhanshu. Sudhanshu. Yes sir. So in Baba Roman Research Center, you might get few questions about nuclear reactors. So in nuclear reactor, we have nuclear rods. How do we cool them? Because they go at very high temperature. Yes, How do sir. we cool them? रॉड को कूल करने का सर। Because they go at very high temperature, तो उनको कूल कैसे करते हैं? कूल कैसे किया जाएगा?
तो तुम किसी भी गर्म चीज को कूल कैसे करोगे सर घर पे? इस पे फ्लूड सर इस पे फ्लूड को हाई वेलोसिटी देके सर। ओके, तो रोड में क्या करेंगे? रोड वाले केस में क्या करेंगे? अनाकुलर रोड के केस में क्या करेंगे? हाँ हाँ। सर सर इस पे वैसे करें सर, फ्लूड एक सुटेबल फ्लूड चूज करेंगे, फिर उसको हाई वेलोसिटी से इस पे थ्रो करेंगे सर। ओके, तो उससे क्या होगा? सर उससे सर यहाँ पे कन्वेक्शन होगा सर, और कन्वेक्शन से वो कूल होगा सर। ओके, कन्वेक्शन के केस में हम फोर्स कन्वेक्शन कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर यस सर। कोफिशिएंट की जनरली वैल्यू किस रेंज में रहती है फोर्स कन्वेक्शन के केस में? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू हीट ट्रांसफर यस सर। किस रेंज में रहती है? 0 से 1, 1 to 5, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा। अगर मैं फोर्स कन्वेक्शन लूँ, नेचुरल कन्वेक्शन लूँ, इन दोनों में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का डिफरेंस कितना हो? सर ये तो नहीं बता सकता सर, लेकिन फोर्स कन्वेक्शन में ज्यादा होता है सर। हीट नेचुरल कन्वेक्शन में कंपैरेटिवली। यस यस सर। अगर मेरे को फोर्स कन्वेक्शन से भी ऊपर चाहिए हीट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो मैं क्या करूं? मेरा फोर्स कन्वेक्शन से मेरी हीट नहीं निकल रही, तो मैं क्या करूं? फोर्स कन्वेक्शन से हीट नहीं निकल रही। बॉइलिंग सुना है? बॉइलिंग, यस यस सर। बॉइलिंग में उससे भी ज्यादा होता है। यस सर, बॉइलिंग मैच का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है सर। ये बार कले पूछने वाले हैं, ठीक है? ये हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पूछते हैं। तो सिंपल, एक सिंपल सा जो उनका पेट क्वेश्चन है, वो सिंपल तुम्हें बताने वाला हूँ, और ट्राई करना है इसका आंसर करने के लिए, ठीक है? तो जनरली क्या है कि बहुत बड़ा इनका ट्यूब है, जिसमें यस से यस वो कूलिंग वाटर फ्लो करेंगे। यस यस तो जो रोड की हीट है वो कॉन्स्टेंटली उसको मिल रही है, यस ठीक सर। है? यस बहुत सारी रोड होती है, एक रोड नहीं होती, नंबर ऑफ रोड्स होती है उधर, ठीक है? तो यस वो यस सर। इतना ज्यादा हीट निकलता है उधर से कि वो वाटर जो है जो उस ट्यूब में है वो बॉयल हो जाता है। अच्छा। ओके, ओके ओके। यस सो यस सर। अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब यस यस सर। तुम टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रा कर दो। सर शुरू में सर मीन्स जो फ्लूइड है वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा सर। 25 मान के चलो, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने इनलेट दिया फ्लूइड को, ओके सर। तो वो कैसे 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 टेम्परेचर प्रोफाइल बढ़ेगी उसके अंदर? सर शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा सर, फिर उसके बाद बॉइलिंग होगा सर, तो ओके, उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा सर। उसके बाद? सर सर उसके बाद जो स्टीम है, उस जो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर रैंडमली बढ़ जाएगा सर, क्योंकि सर जो स्टीम होता है उसका स्पेसिफिक हीट फ्लूइड से ज़्यादा होता है सर। देन ओके, यहाँ पे सडन जंप आ जाएगा सर। ओके, फिर उसके बाद इंक्रीज करते जाएगा सर। ओके, ठीक है। अब सिंपल एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर। सपोज एक टैंक है बहुत बड़ा, यस उसके सर। नीचे बिल्कुल टैंक के बॉटम पे ओरिफिस है, यस तो यस सर। वाटर वाटर उधर से बाहर आएगा। हम्म। इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे लेवल कम होगा यस वेलोसिटी सर। कम यस होगी, ठीक यस है? यस सर। यस यस सर। तो हाइट जो है वो हम्म। टाइम के साथ कैसे कम होगी? लीनियरली, पैराबोलिक होगा, कि किस तरह का रिलेशन होगा हाइट का? हाइट का टाइम के साथ सर। हम्म, पढ़ा है कहीं पे ये? यस सर, यस सर, पढ़ा हूँ सर। सर मीन्स एच टू द पावर 3/2 से वेरी करेगा सर टाइम के साथ। टाइम के साथ कितना वेरी करेगा? 3/2 की पावर से वेरी करेगा। यस सर। सर ओके, क्योंकि सर AdH/dt मीन्स यहाँ पे मास कंजर्वेशन लगा दिया सर। देन ओके, AdH/dt इज इक्वल टू √2gh into a। ओके, सर एट एनी इंस्टेंट पे हाइट h पे मान लिया सर। देन AdH/dt इज इक्वल टू देन DHY यहाँ पे इंटीग्रेशन किया सर, तो यहाँ पे h⁻³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आया सर। ओके, ओके, सर h⁻³ चलो, -3/2 क्योंकि हट रहा ओके, ओके, कोई बात नहीं, है। देखते यस हैं। यस।
अब एक और केस लेते हैं, Yes, इनविसिड फ्लो पढ़ा है? इनविसिड फ्लो क्या yes, होता है? yes, sir. क्या होता क्या है? सर इनविस्किड फ्लो में सर विस्कस फोर्स, जो दो फ्लूइड के लेयर, दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है सर। ओके, तो वहाँ ये कहाँ विस्कस कहाँ फोर्स होता है? ये कहाँ होती है? कहाँ मानते हैं हम इसको नेग्लिजिबल? मीन्स कहाँ, मीन्स कोई प्रैक्टिकली कहाँ एप्लीकेशन? मालूम है? हाँ, बेसिकली जहाँ पे इनविस्कस फोर्स सर बहुत ऐसे कौन कौन से सपोज फोर्सेस होते हैं इसके अलावा? विस्कस के अलावा और कौन सी फोर्स लग रही है? सर अगर प्रेशर फोर्स लग रही है सर, और ग्रेविटी फोर्स लग रही है सर, और और सर और तीनों का सम मीन्स इनर्शिया फोर्स सर। ओके ओके, तो यस। ठीक है, तो ये बताओ भी, अब इन विस्कस फ्लो जो है, जहाँ पे विस्कोसिटी कम हम मान रहे हैं, बाकी डोमिनेट हो गया है, इनर्शिया डोमिनेट हो गया है, तो यस वो सर। कहाँ कहाँ एग्जांपल पता है कोई? कहीं एग्जांपल बता सको भी, ये एग्जांपल है इसकी? सर ये जो है सपोज सर यही जो एग्जांपल मैंने लिया था सर, इसमें हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं सर। किसमें? सर जो टाइम के साथ जो हाइट वेरी कर रहा था सर, उसमें विस्कस फोर्स को नेग्लिजिबल माना जाता है सर। अच्छा, क्यों? सर हम्म, ऐसा क्यों माना जाता है? वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है? सर वाटर की विस्कोसिटी डेटा तो नहीं पता है सर, विस्कोसिटी कितनी होती है सर। तो वाटर के अंदर तुम बोल रहे हो भी, जो सेंटर जहां भी है, तुम बात कर रहे हो जहां पे पानी नीचे गिर रहा है, टैंक के अंदर पानी नीचे आ रहा है, तुम्हारी टैंकी ले लेते हैं जो ऊपर पानी वाली टैंकी है, तो उसमें विस्कस इफेक्ट नहीं आएगा मतलब? सर आएगा सर, बट उसको एज कंपेयर टू द ऑल अदर फोर्सेस इसको नेग्लिजिबल माना जाएगा सर। ओके गुड। तो अपन एक काम करते हैं, एक सर्कुलर सिलेंडर को हम विस्कस फ्लो में रखते हैं, इनविसिड फ्लो में रखते हैं, ओके ठीक सर। है? तो ओके सर। ये बताओ भी, प्रेशर कहाँ सबसे ज्यादा होगा? सर मीन्स एक सॉलिड सिलेंडर है। उसके ऊपर से फ्लो कर रहा है फ्लूइड, यस यस सर। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? हम्म, सर इसके ऊपर से सर यहाँ पे तो सर सबसे पहले बाउंड्री लेयर बनेगा सर। ओके, यहाँ पे मीन्स सर जो फ्लूइड है वो फ्लो रहा है हॉरिजॉन्टली सर, मीन्स जो मैं सिलेंडर के ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल। करके बता ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो ये फ्लो है, यस और सर। यहाँ सर्कल ऐसे, ये पड़ा सेंटर ऐसे, तो ये फ्लो हो रहा है। ओके। अब बताओ। अच्छा, देन इसमें प्रेशर का वेरिएशन सर यहाँ पे प्रेशर घटता जाएगा सर, मीन्स एट द एंट्रेंस लेवल पे मैक्सिमम होगा सर। कहाँ पे? एंट्रेंस पे, जहाँ सर फ्लूड फ्लूड एंटर किया है? यस सर। फिर उसके बाद ओके, फ्रिक्शन विस्कस फोर्स कुछ नहीं आएगा नहीं, सर उसके बाद। चैनल में नहीं पूछ रहा मैं, सर्कल के जो सिलेंडर के सरफेस के ऊपर पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? सर इंट्रेंस पे ही होना चाहिए सर, क्योंकि सर फ्रिक्शन के कारण प्रेशर घटता जाएगा सर। नहीं नहीं, मैंने पूछा भी इस सरफेस, ये जो अपन मैंने सिलेंडर बनाया है, एक मिनट, लोड हो रहा है, तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं प्रेशर देखना है मेरे को, सिर्फ इस सरफेस के ऊपर, इस तो सरफेस सबसे पे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? सबसे ज्यादा प्रेशर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? इनविसिड फ्लो है, हाँ। अच्छा इनविस्कस सर, देन प्रेशर सर कांस्टेंट रहेगा सर। प्रेशर मीन्स कांस्टेंट रहेगा, यस सर। तो फ्लो कैसे हो रहा है फिर? सर फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि सर इनिशियली हम लोग कुछ उसको कुछ दिए होंगे, कुछ फोर्स दिए होंगे, वही उसी फोर्स के कारण, उसी इनर्शिया फोर्स के कारण ये फ्लो हो रहा है सर। ओके, यस सर। मतलब कोई प्रेशर की वजह से फ्लो नहीं होता है? प्रेशर अगर फ्लो होता हो जा रहा है तो प्रेशर नहीं चेंज होता? फ्लो के अगर इनविसिड भी है तो प्रेशर चेंज नहीं होगा? सर वन अच्छा मिनट। चलो, सिंपल केस लेते हैं सर, सिंपल सर जनरल लेते हैं। सर यहाँ मैंने पे
इनिशियल वेलोसिटी दे दी u इज इक्वल टू 1, ओके ठीक है, सर, ये 1 ओके दे दी सर, मैंने। ओके। तो यहाँ पे जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे u ज्यादा होगा कि कम होगा, यहाँ से कैसे पता लगेगा ये u सर, ज्यादा है कि कम है? सर यदि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है सर, देन यू कांस्टेंट रहेगा सर। ये कांस्टेंट रहेगा। ये सर और यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर भी साथ में दे दूं, प्रेशर यहाँ ज्यादा है, P1 इज मोर देन P2, तो P1 इज मोर देन P2। और सर यदि ये इनविस्कस फोर्स है सर, इनविसिड है, विस्कोसिटी नहीं मान रहा मैं, ये सब विस्कोसिटी नहीं। ओनली प्रेशर मान रहा हूँ, प्रेशर ही एक सर फोर्स है यहाँ बस। पे सर, यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है सर, एंड जो डायटम हेड है वो भी तो कांस्टेंट है सर, हाँ, और कुछ लॉस भी नहीं हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल है सर। सर दिन अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू बर्नौली के उससे। अच्छा, ठीक है। यस, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक, यस सर, यदि स्पीड कांस्टेंट है, फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है ना, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन कम हो गया, इस पे फिर बढ़ गया। अच्छा, अच्छा, ये सर यदि क्रॉस सेक्शन यदि चेंज हो रहा है, देन सर प्रेशर, सर ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है सर? देखो यार, सर्कुलर सिलेंडर रखा है यहाँ पे, तो पहले कन्वर्ज कर रहा है फिर डाइवर्ज कर रहा है। पहले कन्वर्ज कर रहा है, पहले कन्वर्ज कर रहा है, फिर डाइवर्स कर रहा है। कन्वर्स कर रहा है, सॉरी, पहले कन्वर्स कर रहा है, फिर डाइवर्स कर रहा है। सर देन शुरू में जो प्रेशर है सर, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है सर इन कन्वर्जिंग सेक्शन, देन वेलोसिटी बढ़ेगा, देन प्रेशर घटेगा सर। सर फिर उसके बाद डाइवर्जेंस सेक्शन, इसलिए प्रेशर बढ़ता जाएगा सर। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि भी प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सर यहाँ पे थ्रोट पे होगा सर, जहाँ पे दोनों मीट करेगा। यहाँ पे? सर ये फिगर अच्छा से दिख नहीं रहा है सर, मीन्स सर ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन सेम ही है सर, इसलिए वैसा कंफ्यूजन हो रहा है एक सर। मिनट, दोबारा पिक्चर बना देता हूँ यार मैं। सर ऐसा लग रहा है पूरा क्रॉस सेक्शन सेम है सिंपल सर। यार, एक सर्कुलर सिलेंडर बनाओ चैनल में, क्या प्रॉब्लम है, उसको अपने कॉपी में बनाओ। ओके, सर्कुलर सिलेंडर, ओके सर। सिलेंडर बनाओ, एक सर्कल बना दो सिंपल एक। सिंपल मीन्स क्रॉस सेक्शन सेम नहीं रहना चाहिए ना सर? यार एक मिनट, तो यार कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये देखो, अब दिखाई दे रहा है तो बताना मेरे को। यस। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब देख रहा, ये चैनल बना दिया, यस सर। यहाँ पे मैंने सिलेंडर रख दिया ऐसे, अब दिख रहा है? यस, यस सर। अब बताओ, अब क्या होगा? अच्छा, मेरा यही बस क्वेश्चन है बस, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। वो अच्छा ऐसा सिलेंडर रख दिया, देन जो प्रेशर है, 7 मिनट्स सर, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए सर, आई थिंक। ओके, विशाल सर, सॉरी वीरेंद्र सर, आप आ जाइए सर, मेरा हो गया सर। यस सर। Okay, Atinder, can you come out of it? यस सर, आई एम आउट। Okay, I think Saglani sir has his, yeah, Saglani sir. Okay, so Sudhanshu, one of your favorite subject is strength of material also, right? Yes, yes sir. So Sudhanshu, what do you understand by pressure vessel? Sir, pressure vessel is the type of vessel which is used to carry out the fluid, sir. Can you give me a few name of few pressure vessels? Sir, few name of pressure vessel.
Have you seen pressure vessel? Sir, pressure well means sir in which high pressure of fluid is flowing. Like sir, suppose any type of like it's पावर प्लांट में यूज किया जा सकता है प्रेशर वेजल सर, क्योंकि वहाँ पर स्टीम हाई प्रेशर टेम्परेचर पे होता है सर. एंड ऑल्सो फ्लूइड कैन ऑल्सो बी यूज टू कैरी आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज प्रेशर वेजल सर. कोई एग्जांपल दो एक. घर में कोई है आपकी जो कुछ एक प्रेशर वेसल्स? प्रेशर वेजल सर पाइप कैन मींस एलपीजी सिलेंडर देखा है आपने yes sir. विद प्रेशर वेसल? Yes sir, it can also be treated as pressure vessel sir. So is it thin pressure vessel or thick pressure vessel? सर वो देखना पड़ेगा सर, डायमीटर टू थिकनेस रेशियो सर, इंटरनल डायमीटर टू थिकनेस रेशियो सर. What is it? If it is less than 20, then it will be treated as thin pressure vessel, and if greater than 20, then it will be treated as a thick cylinder vessel sir. So what do you cylinder think? vessel. Is it thin or thick? आई थिंक थिक सर, क्योंकि सर यहाँ जनरली थिक मतलब जो सिलेंडर का थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होता है सर, देन यहाँ पे थिक सिलेंडर माना जा सकता है सर. मतलब डायमीटर के कंपैरिजन में आपकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, ये बोल रहे हो? डायमीटर इज ग्रेटर देन 20. सर जो डायमीटर और थिकनेस दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है सर, इसलिए इसको थिक बोला जा रहा है सर. हाइड्रोलिक सिलेंडर देखा है आपने? हाइड्रोलिक सिलेंडर यस सर, देखा नहीं हूँ सर, बट क्रेन देखी है? क्रेन क्रेन, यस सर, क्रेन देखा हूँ सर. क्रेन का जो आपका रैम है जो बाहर निकलता है एंड इट कैन गो इनसाइड. सो जो आपका सिलेंडर है उसका वो थिन है कि थिक है? बाहर निकलता है सर, वो तो सर वैसे डायमीटर टू थिकनेस. प्रेशर कुकर देखा? प्रेशर कुकर ये सर प्रेशर कुकर देखा हूँ सर. थिन है कि थिक है? सर वो थिन है सर, क्योंकि वहाँ पे उसका थिकनेस बहुत ही कम होता है सर, इसलिए. ओके. तो कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं? सर वहाँ जनरली 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती है सर. सर एक रेडियल स्ट्रेस सर, एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. ओके. यस. और जो आपकी सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस है उसकी डायरेक्शन क्या है? सर उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मींस इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस है सर, एंड इट इज टेंसाइल इन नेचर होता है सर. डायरेक्शन क्या? वही तो बोल रहा हूँ, कौन सी सर डायरेक्शन? सर along the circumference सर. Along the circumference means what? Radially? सर एक थोड़ा फिगर में आके समझाऊं सर? ऐसे बताओ ना, रेडियली है, टेंजेंशियली है, लॉन्जिट्यूडिनली है, कैसे है? सर यस सर, टेंजेंशियली है सर. टेंजेंशियली है. यस सर, टेंजेंशियली. अच्छा, आपके पीछे बीम दिख रही है मुझे, ये शेप क्यों दी है? सर ये आई सेक्शन की है सर. क्यों लिया हो इसको? Why you have taken I section? सर क्योंकि बेंडिंग में इसका जो सेक्शन मॉडुलस होता है सर, इसका बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनदर सेक्शन सर, इसलिए बेंडिंग को आराम से कैरी कर सकता है सर, बेंडिंग स्ट्रेस को आराम से कैरी कर सकता है सर. तो कंक्रीट की क्यों नहीं बना दी हो आई सेक्शन में? कंक्रीट सर, क्योंकि सर डक्टिलिटी एंड टफनेस ज्यादा होता है सर एज कम्पेयर टू द ब्रिटल मटेरियल, उसका टफनेस ज्यादा होता है सर, इसलिए. ज्यादा होता है डक्टिलिटी? ये सर डक्टाइल मटेरियल का टफनेस ज्यादा होता है सर, इसलिए. और फिर इसका मतलब है कि
जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा है उसकी आपकी टफनेस भी ज्यादा होगी, राइट? जिसका डक्टिलिटी ज्यादा है उसका टफनेस भी ज्यादा होगा। यस सर, इफ कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल सर। नहीं, मैं अगर दो मटेरियल देता हूँ आपको, मान लिया माइल्ड स्टील और देता हूँ एंड अदर वन इज कॉपर, यस यस सर। डक्टाइल है ज्यादा, which one is more ductile? माइल्ड स्टील एंड कॉपर सर। Which one is more ductile? सर कॉपर इज मोर डक्टाइल सर। So then which is more tough? सर ऐसे सर नहीं बोल सकता सर कि कौन ओनली डक्टिलिटी से नहीं बोल सकता सर, वो सर एरिया देखना पड़ेगा सर। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो एरिया है वो जो ज्यादा है वही होगा सर। So toughness किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपने कहा डक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है ना? अ, सर ऐसे सर सर डक्टिलिटी डायरेक्टली नहीं बोल सकते सर कि डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डक्टिलिटी सर। ये क्यों सर ऊपर यहाँ depend- पे सर यहाँ पे हमको बस एरिया देखना पड़ेगा सर, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो एरिया। आप मुझे तो उसके टर्म में बताओ, कोई पैरामीटर्स के टर्म में बताओ, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टफनेस एरिया ज्यादा सर, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी सर, क्योंकि जो ज्यादा ज्यादा जिसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका एरिया भी ज्यादा होगा सर, इसलिए। सर आल्सो सर डक्टिलिटी मींस सर यदि सपोज कॉपर का बनाते हैं सर, ऐसे नहीं बोल सकता सर डायरेक्टली डक्टिलिटी से सर, हम्म, क्योंकि डायरेक्टली डक्टिलिटी से नहीं बोल सकता सर कि टफनेस किसका ज्यादा होगा सर। ओके। आपको टेंसर पता है? स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस को टेंसर क्यों बोलते हैं हम? व्हाई कॉल स्ट्रेस एज टेंसर? सर क्योंकि सर ये प्लेन मीन्स ये प्लेन पे डिपेंड करता है सर, स्ट्रेस हम किस प्लेन पे लगा रहे हैं सर, इसलिए। सॉरी सर। जैसे सर सपोज कोई स्ट्रेस कोई एक एलिमेंट है, देन उस पे स्ट्रेस को ये भी दिखाना पड़ता है सर वो कौन से प्लेन में लग रहा है सर, इसलिए। नहीं, वेक्टर क्यों नहीं बोल देते हम स्ट्रेस को? सर क्योंकि सर वेक्टर में तो बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है ना सर, यहाँ पे हमको प्लेन भी शो करना पड़ेगा सर, इसलिए। क्यों क्यों करना पड़ेगा प्लेन? प्लेन क्यों करना पड़ेगा? स्ट्रेस सर, स्ट्रेस के लिए प्लेन में क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि सर ये टेंसर है सर, इसलिए। ये तो सर पूछ रहा हूँ इसका क्यों है टेंसर? सर इसका एग्जैक्ट तो मतलब नहीं पता है सर कि स्ट्रेस को किस प्लेन में क्यों किया जाता है सर। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है आपको? यस सर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस? सर 90 डिग्री सर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस? The angle between maximum shear stress and ये सर 90 डिग्री सर। And what is the angle between the maximum minimum principal stress and maximum minimum shear stress? सर ये नहीं बोल सकता सर, क्योंकि जिस प्लेन में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा
फिर उसका कौन सा प्लेन में मिनिमम शियर स्ट्रेस होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ये नहीं बोल सकते सर। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के बीच आप एंगल नहीं बता सकते, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के बीच, मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेसेस के बीच। यस सर, सर 45 डिग्री होता है सर। ओके ओके सुधांशु, नाउ ओके, लेट्स से मैं आपको बार देता हूं और बार में मैं एक्सेल लोड लगा अप्लाई कर रहा हूं, टेंसाइल लोड, ओके सर। तो उसमें शियर स्ट्रेस हो सकती है? हाँ यस सर। कौन से प्लेन में, इन विच प्लेन? सर शियर स्ट्रेस तो बहुत सारे प्लेन में होगी सर। ओके ओके सुधांशु, सो ओवर टू डॉक्टर विजेंद्र नाउ। Yes. So Sudhanshu, you said thermodynamics is also one of your subjects, right? यस यस सर। Can you tell me what do you understand by quality of energy? सर क्वालिटी ऑफ एनर्जी मीन्स सर किसी भी सिस्टम से कितना एनर्जी हम आउटपुट ले सकते हैं ताकि उसे फिर वर्क में कन्वर्ट कर सके सर, लाइक दैट इज ये क्वालिटी क्वालिटी ऑफ तो नहीं है, ये तो अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहे हो मेरे को लगता है आप। क्वालिटी क्या होती है एनर्जी की? क्वालिटी ऑफ एनर्जी। आप आपके हिसाब से तो वर्क जो 100% क्वालिटी एनर्जी है, एम आई राइट? नो सर, अवेलेबल एनर्जी 100% है सर। क्वालिटी ऑफ एनर्जी मीन्स किसी एनर्जी की क्वालिटी को मेजर कैसे करोगे आप? एनर्जी की क्वालिटी को गिव्स फंक्शन गिव्स फ्री एनर्जी सर, गिव्स फ्री एनर्जी से सर। गिव्स फ्री एनर्जी, वो तो क्वालिटी थोड़ी मेजर करता है। ऐसा कौन सा लॉ है थर्मोडायनामिक्स का जो क्वालिटी को मेजर करता है? कौन सा लॉ है क्वालिटी को मेजर करता है? थर्ड लॉ। चलिए ये बता दीजिए, क्वांटिटी कौन सा लॉ मेजर करता है? सर क्वांटिटी मींस कौन सा एनर्जी, कौन सा क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हैं? एनर्जी की क्वांटिटी, कितने किलो जूल एनर्जी, ऐसे। सर ये तो फर्स्ट लॉ मेजर करता है। यस एंड यस देन ये सेकंड लॉ जो है आपका, ये क्या मेजर करता है? सर, ये मेजर करता है सर लाइक कोई भी प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। जैसे सेकंड लॉ के अनुसार कोई सिस्टम है, एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में पॉसिबल है सर, और उस डायरेक्शन में पॉसिबल होने के लिए और क्या करना पड़ेगा। आपने टर्म क्वालिटी ऑफ एनर्जी सुना तो होगा। यस यस सर। कुछ हाई क्वालिटी एनर्जीज और कुछ लो क्वालिटी एनर्जीज के बारे में बताओ। सर लाइक वर्क सर हाई क्वालिटी ऑफ, नहीं ये तो हाई ग्रेड एनर्जी। चलिए ग्रेड ऑफ एनर्जी और क्वालिटी ऑफ एनर्जी में डिफरेंस बता दीजिए। हाई ग्रेड एनर्जी और हाई क्वालिटी एनर्जी सेम चीज है, अलग चीज है? सर अलग अलग चीज है सर। आर यू श्योर? व्हाट इफ आई से ग्रेड ऑफ एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, हाई क्वालिटी एनर्जी, लो क्वालिटी एनर्जी इज सेम थिंग? सर मींस सर हाई ग्रेड एनर्जी उसको बोला जाता है सर जो जिससे हम उसे 100% उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, लाइक वर्क। एंड लो ग्रेड एनर्जी उसको बोला जाता है जिसको हम पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे फॉर्म में। तो like ऐसी कोई एनर्जी बताओ जिसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी कोई एनर्जी जो 100% वर्क, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि सर एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी है। तो फिर हाई ग्रेड एनर्जी कोई हुई नहीं एज पर यू। आपने बोला ना हाई ग्रेड एनर्जी वो है जिसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो बोला आपने। यस सर। सर तो ऐसी कौन सी एनर्जी है हाई ग्रेड एनर्जी? सर एनर्जी मींस सर वर्क इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी सर, इसलिए सर वर्क को यहाँ पे एनर्जी। मेरा पहला क्वेश्चन वही था कि क्या वर्क 100% क्वालिटी है उसके अंदर? यस सर मींस लेकिन क्वालिटी ऑफ एनर्जी
पूरा नहीं है सर। I give you a statement, prove that this statement is correct. ओके सर। Quantity of energy is always conserved. क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, यस सर, यस सर। कौन सा लॉ है ये? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज आल्सो इज ऑलवेज फर्स्ट लॉ सर। Good. Now another statement I am giving you. Quality of energy always degrades. ये सही सेकंड लॉ है सर। Second law. अब prove करो इसको. Quality of energy always degrades. इसका मतलब क्या है? सर क्योंकि सर यूनिवर्स का सर जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी सर वो एंट्रोपी से रिलेटेड है सर। सर Okay. इसलिए सर ये जो यूनिवर्स का एंट्रोपी सर वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है सर। यदि क्योंकि सर जनरली जो भी एक्टिविटी होता है सब में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और सर इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ता है सर। इसलिए जब भी एंट्रोपी बढ़ेगा सर देन क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। सो इसलिए सर। अच्छा मेरे को बताओ, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा यस सर, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी पे क्या इंपैक्ट होगा और उसकी एंट्रोपी क्या होगी? सर इसकी एंट्रोपी फिर जीरो हो जाएगी सर इक्विलिब्रियम में। तो आर यू श्योर? सर जब इनवर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है। सर इनवर्स की एंट्रोपी जीरो हो जाती है सर। इनफैक्ट जब यूनिवर्स इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। एग्री? सर सॉरी सर, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग यस सर। एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा रखो और बताओ इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी क्या होगी यूनिवर्स की। यूनिवर्स की एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड द यूनिवर्स इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा रखो और बताओ इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी क्या होगी यूनिवर्स की। ये तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं। यस सर। सर वहाँ पे एंट्रोपी जीरो हो जाए, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा सर उस टाइम पे। कांस्टेंट मींस क्या? मिनिमम मैक्सिमम कुछ तो होगा। एंट्रोपी फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उसके बाद भाई सिस्टम जो आपका यूनिवर्स है, यस सर, उसमें जितनी भी प्रोसेसेस हैं उसकी एंट्रोपी को बढ़ा रही हैं, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है यूनिवर्स की। और कब तक बढ़ती रहेंगी? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया। सर ये मैक्सिमम हो जाएगा सर उस टाइम पे, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगा सर। और क्वालिटी ऑफ एनर्जी मिनिमम हो जाएगा सर। मिनिमम हो जाएगा। यस सर। तो आप बता सकते हैं क्वालिटी होता क्या है? क्वालिटी मींस सर उससे मैक्सिमम कितना, लाइक सर इट इज रिलेटेड टू रैंडमनेस सर। लाइक इफ रैंडमनेस सर इफ रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा देन जो एनर्जी का जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगा सर। उससे मीन्स अवेलेबल एनर्जी है वो जो मॉलिक्यूल के अंदर है वो और डिक्रीज हो जाएगा सर, इसलिए क्वालिटी ऑफ एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा सर उस टाइप से। Okay, so Sudhanshu, let me give you the feedback of this part. देखो ये क्वालिटी वैलिटी का आंसर आप नहीं दे पाए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ क्वालिटी लॉ। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है ये। अब होता क्या है कि जैसे मेगा मॉक चल रहे हैं, तुम्हारे 3-4 मेंटर्स बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें क्या होता है सिंपल क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट पड़ता है लगने, जबकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई साहब बता दो, मेजर कैसे करते हैं? एंट्रोपी ही वो कंसेप्ट है जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स। ये लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। द लॉ बेसिकली आपका इंटरप्रिटेशन है ना लॉस की, कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये पहला लॉ है। क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन इज अ कांसेप्ट रिलेटेड टू इरिवर्सिबिलिटी। Irreversibility is the difference between the maximum work which you can get and the actual work which you get. So that means somewhere the quality of energy is getting compromised. Quality of work is getting reduced. Right? This is something which you have to be aware about. कि हमारा quality जो energy का है वो कम हो रहा है. Right? This is something which you have to be aware कि quality of energy is a concept which is related to process. And हर process जो real है वो irreversible है.
इरिवर्सिबल है तो भाई साहब उसमें एंट्रोपी जनरेट होगा, एंट्रोपी जनरेट होगा तो उसकी क्वालिटी गिरेगी। और क्वालिटी को ऐसे मेजर कर सकते हैं एंट्रोपी जनरेशन की टर्म में, ये बोल सकते थे आप कि सर इरिवर्सिबिलिटी जो है वो इनडायरेक्ट वे है क्वालिटी को मेजर करने का। हाई ग्रेड एनर्जी मींस दैट एनर्जी फ्रॉम वेयर I can get more work. Low grade energy is that from which I can get less. I cannot get that work, that much work. This is how you need to understand. Got it, Sudhanshu? Yes, yes, yes. This is how you have to understand it. Now over to Virender sir and then other mentors. Okay, so okay, Sudhanshu, I think कुछ जगह आपने आंसर ठीक दे दिया, सोच रहे थे, कुछ जगह आपने सोच नहीं पाए। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर की जब मैंने बात की, तो एलपीजी सिलेंडर थिक और थिन कैसे डिसाइड करोगे? थिक क्या हो, मतलब रिलेटिव साइज है, थिक और थिन कोई ऐसा थोड़ी है दिखने से थिन है और थिक है। यस, रिलेटिव डायमीटर का रिलेटिव साइज है सर। एलपीजी का सिलेंडर कौन से मेटल का बना होता है? स्टील का बना होता है वो। यस यस। तो थिक जो आप सोच रहे हैं, आपके हिसाब से अगर थिक बात करें, उठा ही नहीं पाओगे उसको। गैस तो बाद की बात है जो आप उसमें डालोगे। अच्छा, ठीक है ना? तो वो दैट इज ए केस ऑफ थिन स्फेरिकल दिस सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। अच्छा ओके, सो अच्छा, आई सेक्शन बीम का आप बता पाए, बट टफनेस में आप स्टक अप कर गए। ये सर टफनेस डक्टिलिटी में सर। डक्टिलिटी, सी इससे कॉम्बिनेशन ऑफ डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जिसमें आपको जो दोनों चीजें जो है वो अच्छी मिलेंगी, उसका एरिया अंडर द डायग्राम ज्यादा आएगा। माइल्ड स्टील में क्या है? व्हाट इज इन माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील में आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, क्योंकि डायग्राम की हाइट मेजर्स द स्ट्रेंथ। तो आपकी हाइट भी ज्यादा है और लेंथ भी सिग्निफिकेंट है। जबकि कॉपर है, कॉपर की हाइट बहुत कम है, अगर आप देखो डायग्राम वो चला जाता है, बट लेंथ इज मोर। बट व्हेन यू टेक द एरिया अंडर द डायग्राम, देन द एरिया अंडर द डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील इज क्वाइट हाई। यस यस सर। तो उसकी टफनेस ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टफनेस को कौन डिसाइड करेगा, यू से इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। अगर स्ट्रेंथ ही बहुत है, डक्टिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन, तो क्या होगा? यू विल नॉट बी कास्ट आयरन, यस सर, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है सर, बट डक्टिलिटी कम है। एक डिसाइड नहीं करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल डिसाइड। ओके, स्ट्रेस टेंसर जो बात की वो क्या है कि स्ट्रेस टेंसर हम इसलिए बोल देते हैं कि मुझे इन एडिशन टू वेक्टर, जैसे हम बोलते हैं कि इसका यू आर हैविंग दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यू आल्सो नीड टू हैव ए प्लेन। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि ये जो है वो इसका जो मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन इस तरफ को है, राइट की तरफ को है, बट ये अलोन डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका नेचर क्या है। क्या टेंसाइल है कि क्या, इज इट टेंसाइल और इज इट शियर? बता सकते हो आप? नो नो सर। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इसको रखते हुए, इसको सेम रखते हुए, इफ आई गिव यू द प्लेन परपेंडिकुलर टू इट, तो आप बोलोगे स्ट्रेस कौन सी जनरेट हो रही है? टेंसाइल सर। अगर मैं ही बोलूं कि प्लेन जो है इसके पैरेलल है, यस शियर, आई नीड वन मोर पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ, इन दिस केस एस, इसलिए उसको टेंसर बोला। अच्छा ठीक है, एंगल बिटवीन वो आप ठीक बता पाए मुझे, आई थिंक दैट वाज ओके। सोचना है बस, दैट्स ऑल। थोड़ा सोच के बोलना है जो बोलनी है। ओके सुधांशु? यस यस सर। सो नाउ ओवर टू डॉक्टर अतिंदर। थैंक यू सर। सो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था अबाउट फ्लो बॉइलिंग, वो तुमने सही आंसर कर दिया, दैट वाज फाइन सुधांशु। एंड उसके बाद आई वेंट टू फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैंने वो क्वेश्चन पूछा जिसमें हाइट डिक्रीज कर रही है विद टाइम और फ्लो निकल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टी की पावर स्क्वायर का वो आएगा, सो इट्स पैराबोलिक। ठीक है, चेक कर लेना, उसका एक्सप्रेशन काफी सारे बुक्स में तुम्हें मिल जाए। सर यहाँ पे इक्वेशन यही बनेगा ना सर, AdHy/dt इक्वल टू √2GH into A। तुम बोल क्या रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलना। A सर यहाँ A into means A is the cross section of the long cylinder and DHy होगा ये बताओ, H कैसे कम होगा? H फ्लो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। फ्लो रेट कैसे निकालोगे? रोजी H से। यस सर। वो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है ये वाला, रोजी H से सीधा निकल आएगा ये। ठीक है, वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, जैसे वेलोसिटी निकालोगे वैसे क्यू का फॉर्मूला निकल आएगा टाइम के साथ, फिर वो क्यू को तुम H से रिलेट करोगे तो वो स्क्वायर का आएगा फंक्शन, कहीं ना कहीं सिंपल सा काम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया। उसके बाद फ्लो ओवर अ सर्कुलर सिलेंडर था, वो सारा ही गलत हुआ है तुम्हारा A to Z। एक ही क्वेश्चन का आंसर सही दिया कि भाई अगर स्ट्रेट चैनल होगा, अगर वेलोसिटी सही है, इनविसिड है, तो प्रेशर भी सेम रहेगा, उसके अलावा तुमने कुछ आंसर सही नहीं दिया।
अगर मैं तुम्हें सिंपल ड्रॉ करके बताऊं न्यू बोर्ड पे, तो सपोज ये है बोर्ड दिखाई दे रहा है, Yes, yes, sir. सपोज ये एक सर्कुलर सिलेंडर है और यहाँ से फ्लो आ रहा है, ठीक है, यू इनफिनाइट कह लेते हैं इसको हम, एक अंदर आ रहा है, तो Yes, sir. इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये मानते हो? ये सारा Yes, फ्लो yes. इस पॉइंट पे जीरो आ जाएगा, इधर से हाँ. ऊपर को घूम जाएगा, इधर से नीचे को घूम जाएगा। अब जहां वेलोसिटी जीरो हुई वहां प्रेशर मैक्सिमम आ जाएगा वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। और प्रेशर डिक्रीज करेगा इस तरह, यहाँ तक, जहां तक ये कन्वर्जिंग, जहां तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अच्छा, ये अच्छा. कन्वर्जिंग पार्ट है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग हियर, v इज इंक्रीजिंग इन दिस पार्ट, सॉरी, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा इस पार्ट में, तो इस तरह का एक डिक्रीज करेगा एंड इट विल टच अ मिनिमम एट समवेयर एट दिस पॉइंट। अच्छा, अच्छा. ठीक है, उसके बाद Okay. क्योंकि फिर ये डाइवर्जिंग आ गया, वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो ये अगेन बढ़ना शुरू करेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, तो प्रेशर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे सेम है और मैक्सिमम है। अच्छा. ठीक है, दिस Yes, इज द yes. कॉन्सेप्ट। और अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर की वजह से ड्रैग निकालूंगा, तो सपोज करो ये ऐसा कुछ है, तो ये एक तरह का सिमेट्रिक है, जितना आगे उतना ही पीछे है, अच्छा. उसी तरह नीचे भी सेम है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर Yes, इज नो yes. ड्रैग, प्रेशर ड्रैग ऑन दिस बॉल, ओके, इनविसिड होने की वजह से। ठीक है, Yes, yes. ये कॉन्सेप्ट था इसमें, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना। तो बार्क में तुम्हें ज्यादातर काफी क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से पहला तुम्हारा काम यह है कि भी किसी भी क्वेश्चन को ब्लंटली आंसर नहीं करना है, रीजन थोड़ा सोचना है, सोचने में टाइम लेना, अगर आंसर आता भी है तो भी सोचो, थोड़ा सा ठहराव लो, सोचो भी मैं सही सोच रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, फिर जाके उसको आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, Yes, yes, sir. यू विल हैव 1/20 मिनट्स, इतना लंबा चलेगा आराम से तुम्हारा इंटरव्यू, तो आराम से चिल करके इंटरव्यू देना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। Yes. Okay, sir. ओवर टू विशाल सर। यस, हेलो सुधांशु। Yes, yes, sir. सुधांशु, कुछ मिस्टेक आप कर गए हीट ट्रांसफर में। Sir, एमिसिविटी जो है ना आपका पॉलिशिंग से घटता है, जब आप हाईली पॉलिश्ड करते हो ना, हाई पॉलिश्ड प्लेट अगर आप यूज करते हो तो एमिसिविटी कम होगा। yes. रफनेस से तो एमिसिविटी बढ़ जाता है, रफनेस इंक्रीज करने से क्या होगा, एब्जॉर्टिविटी बढ़ जाएगा, और अगर एब्जॉर्टिविटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एमिसिविटी विल इंक्रीज। Objectivity बढ़ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kirchhoff's law. यस, तो रफनेस हम इंक्रीज तब करते हैं अगर अपने को रेजिस्टेंस कम करना हो, बट शील्ड के लिए तो हम चाहते हैं ना कि सरफेस रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, और Yes, सरफेस yes. रेजिस्टेंस कैसे पड़ेगा, एमिसिविटी को डिक्रीज करके, Yes, sir. 1 - E/EA। Yes, yes, sir. और एमिसिविटी डिक्रीज कैसे करोगे आप, पॉलिशिंग करके। तो ये याद रखना है, बहुत बेसिक मिस्टेक जो आपने कर दिया है इसमें। एच जो है बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जी, बीटा, डेल्टा टी, थर्मोफिजिकल sir. प्रॉपर्टीज जैसे रो, म्यू, सीपी के। तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, आप हीट ट्रांसफर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं किए, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि आपने हीट ट्रांसफर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। सर थोड़ा ये सब तैयारी किया हूँ सर, बट उतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ हाँ, ट्रांसफर में। तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना सुधांशु। यस, आप यस सर। बहुत डर डर के आंसर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप अंदाजा लगा रहे हो। लाइक मैंने पूछा आपसे कि कौन से केस में प्लेट जल्दी कूल होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो आप उसमें भी श्योर नहीं थे। तो वर्टिकल होगी, बट आपने रीजन नहीं जस्टिफाई किया उसका कि वर्टिकल प्लेट क्यों जल्दी कूल होगी। रेट ऑफ कूलिंग में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे। रेट ऑफ कूलिंग तो डिक्रीज करेगा ना टाइम के साथ, बिकॉज टाइम के साथ साथ Yes, टेम्परेचर डिक्रीज yes, करेगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी yes, डिक्रीज करेगा। yes, yes sir. तो थोड़ा सा माइंड को शार्प करना है, बहुत इफेक्टिवली रिकॉल करना है चीजों को। ठीक है, Yes, yes sir. टाइम लो, दैट इज गुड, एक्चुअली इट इज गुड टू टेक टाइम, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत सुस्त लग रहे हो वहां पे। इट विल लुक लाइक यू आर थिंकिंग, यू आर अप्लाइंग योर माइंड। ठीक है, Yes, yes sir. Yes sir. फॉर कंफ्यूजन, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, यू कैन ट्राई टू प्रेजेंट समथिंग सो दैट दे विल गिव यू सम हिंट। आप वहां पे रुक जाओगे या गैस करना लगेगा, वो गलत है। गैस नहीं करना, रैंडम गेसेस आर डेंजरस एक्चुअली फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो रैंडम गेस नहीं करना, यू नीड टू मेंशन समथिंग, एंड इफ यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन यू कैन मेंशन दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक दिस में बी द प्रोबेबल केस, तो वो आपको हिंट दे देंगे आप। ठीक है, बाकी थोड़ा सा चीजों पे काम करो सुधांशु, आई थिंक देन इट विल बी फाइन फॉर यू। ओके Okay, okay sir. सुधांशु, गुड लक। Yes sir. Okay, Okay, thank you sir. Sudhanshu, all the very best to you. Yes sir. Thank When you is your sir. interview? Sir 8 तारीख को है sir. 8 तारीख को। Yes, yes sir.